Yes, class. Lecture number 20, Contract Act, Module 3, Sale of Goods Act. Now, see, last lectures we have seen definition of important terms like buyer and seller, then what is delivery, then goods which are in a deliverable state, then most important document of title of goods, then goods, definition of goods very very important from your exam point of view, and you should write both. Goods includes what and excludes what, so it is an exhaustive definition. And then classification of goods also we have seen that goods are classified into three types, that is existing goods, then second future goods, and thirdly contingent goods. Now see, for a moment let us just see what are the documents of title and we proceed further. I have covered this extensively in the last lecture. The documents of title are the documents which show ownership of the goods. कि goods किसकी है, who owns this good, उसका मालिक कौन है. नंबर 1 बिल ऑफ लैडिंग, द नंबर 2 डॉक वारंट. तो डॉक में अगर गुड्स पड़े होंगे तो उसका वारंट रहता है, एंड दैट वारंट स्पेसिफाइज दैट दीज गुड्स बिलोंग टू whom and these goods are to be delivered to whom. Then next, warehouse keeper certificate, then wharfinger certificate, then fifth, railway receipt when goods are loaded in a railway, and delivery order. Now these are the documents which ascertain the title of goods. Then then we have also seen the classification existing goods, future goods, and contingent goods. Existing goods are further classified into another three types: specific goods, ascertained goods, and unascertained goods, of which ascertained I have already told you that the goods are ascertained, belong to a particular brand. Now suppose you go to a shop which is selling mobiles, so उसके पास बहुत सारे mobiles पड़े रहते हैं. But when you say that you want a Samsung mobile, you want a Oppo mobile, you want a Vivo mobile, तो वहाँ पे वो उसका ब्रांड क्लियर हो गया एंड इट बिकम्स ascertained goods. अनएसर्टेन गुड्स वो होते हैं जो एसर्टेन नहीं हुए हैं, मतलब इफ देर इज सम प्रोसेस टू बी डन फॉर सेलिंग. फॉर एग्जाम्पल, यू गो टू go down or say to a D-Mart and you want to buy 5 kgs of sugar, तो वहाँ पे बोरी में 100 kg पड़ा हुआ है, उसमें से 5 kg आपका, वो 5 kg आपका अलग कभी हो गया. अनएसर्टेन गुड्स आर 100 किलो पूरा जो बोरी पड़ा है वो, एंड जब भी उसमें से निकाल के आपका 5 किलो अलग वजन करके पैक किया जाएगा, दैट विल बिकम एसर्टेन गुड्स. तो अनएसर्टेन गुड को कुछ प्रोसेस करके जो गुड्स बन जाता है वो एसर्टेन हो जाता है. देन कॉन्टिंजेंट गुड्स. Contingent goods, it is an only agreement to sell, depends upon a contingency which may or may not happen. तो शायद एक इवेंट जो हो गया तो ही गुड्स ले आ जाएगा, वैसे नथिंग मच टू बी डन इन दैट. देन गोइंग फर्दर, फॉर्मेशन ऑफ अ सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अभी देखो सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है. नाउ सी व्हाट इज अ सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. फर्स्टली, a sale of contract of goods is a contract. A contract of sale of goods is a contract whereby the seller transfers or agrees to transfer the property in the goods to the buyer for a price. The most important essentials of contract of sale are 7 essentials are there. First, let us discuss them and I will upload the pictures today. फर्स्ट, नंबर ऑफ पार्टीज. इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मिनिमम 2 पार्टीज होने चाहिए, बायर एंड सेलर. वेरी लॉजिकली करेक्ट. नेमली बायर एंड सेलर. सेल इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम वन टू अनदर. हाउएवर लॉ रिकॉग्नाइजेस सर्टन एक्सेप्शन. तो एक्सेप्शन भी है उसके अंडर. अ पार्टनर मे बाय गुड्स फ्रॉम द फर्म एंड मे सेल द गुड्स टू द फर्म इन विच ही इज अ पार्टनर. सिमिलरली अ फर्म मे ऑल्सो डू सो. हाउएवर, distribution of goods amongst partners on account of dissolution of firm do not amount to sale. अगर गुड्स पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गया और 2 पार्टनर अलग अलग हो गए, पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड, और उन लोगों में अगर प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करना, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट होगा, दैट इज नॉट सेल. देन सेकंड, एन एजेंट कैन परचेस हिज ओन गुड्स फॉर द प्रिंसिपल.
अभी देखो एजेंट किसके लिए काम कर रहा है, थोड़ा एजेंसी का रिवर्स करके देखो, एजेंट किसी और के लिए काम कर रहा है, जिसके लिए काम कर रहा है वो कौन है, प्रिंसिपल है। अभी मैं क्या करता हूँ, प्रिंसिपल के बिहाफ पे वो गुड्स मैं ही खरीद लेता हूँ, आई बाय दैट इन माई इंडिपेंडेंट कैपेसिटी, सो दैट कैन बी डन। एंड थर्ड, वन पार्ट ओनर में परचेस फ्रॉम अनदर पार्ट ओनर। तो अगर फ्लैट के दो को ओनर्स है, एक ने दूसरे से खरीद लिया, वो भी सेल में नहीं आएगा, दैट विल बी ओनली अ ट्रांसफर। ओके, सो नंबर ऑफ पार्टीज, मिनिमम 2 पार्टीज होनी चाहिए। एंड सेल इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, लेकिन ये 3 एक्सेप्शन है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स अमंग्स द पार्टनर्स इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। देन सेकेंडली, अगर एजेंट नहीं खरीद लिया प्रिंसिपल के पास से अब खुद के लिए in his individual capacity, then it will not be considered to be a contract of sale. And thirdly, one part owner purchases from another part owner. Okay, so number of parties minimum 2 होने चाहिए, buyer seller. Next, goods, subject matter of contract of sale must be goods only. तो खाली goods ही बेचे या खरीदे जा सकते हैं, so subject matter can be goods only. Then third, transfer of property. In contract of sale, there must be transfer of property from the seller to the buyer. There must be transfer of property from the seller to the buyer. तो seller ने बेचा, buyer ने खरीदा, वो होना चाहिए. The transfer of ownership means transfer of ownership. However, transfer of possession is not requisite. तो possession transfer हुआ या नहीं, subsequently transfer हो सकता है, but transfer of ownership हो जाना चाहिए. That is important from the law point of view. So third important essential, transfer of property. Fourth, price. The consideration for a contract of sale is price. Price means money consideration. It is anything, if it is anything other than money, it will not be a sale. तो अगर कुछ barter exchange के जैसे हो रहा है, मालूम है barter exchange क्या होता है, where goods are being exchanged for goods, तो that will not be sale. Sale सिर्फ तभी होगा when the consideration is price and it is paid in money only. But if the exchange is made by partly for goods and partly for price, it will still amount to sale. तो अगर कभी कभी ऐसा होता है ना कि देखो अभी A wants to sell onions and B is selling say for example mangoes. अभी ओनियन और मैंगो का रेट में फ़र्क है, दोनों एक्सचेंज करते हैं। तो मैंगो जो बेच रहा है वो क्या बोलता है, एक काम करो, मुझे मैंगो खरीदना है, तुमको ओनियन बेचना है, मुझे मैंगो बेचना है। तो दे गो टू ईच अदर एंड दे डिसाइडेड हो कि हम लोग एक काम करते हैं, तुम मुझे 2 किलो कांदा दे दो, मैं तुमको 1 किलो ये दे दूँगा, आम दे दूँगा। लेकिन देखो कांदा 35 रुपीज़ के जी है तो 70 रुपीज़ हो गया, और ये 120 रुपीज़ के जी है, तो डिफरेंस कितना आया, 50 रुपये आएगा। तो डिफरेंस मुझे दे दो। सो गिव मी 50 रुपीज़ एंड गिव मी 2 kgs ऑफ कांदा एंड टेक 1 kgs ऑफ मैंगोज फ्रॉम मी। तो ये एक्सचेंज डेफिनेटली हो गया, लेकिन उसमें प्राइस आ गया, सो दैट विल स्टिल बी कंसिडर्ड टू बी अ सेल। फिफ्थ, एब्सोल्यूट और कंडीशनल. अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी एब्सोल्यूट when the seller transfers or agrees to transfer the property without being dependent on any condition. तो कोई कंडीशन नहीं, बस चाहिए मुझे दे दो और पैसे लेके खरीद लो, सो दैट इज एब्सोल्यूट. वेयर अ कंडीशनल सेल, वेयर एज अ कंडीशनल सेल इज वेयर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स और पेमेंट इज डिपेंडेंट ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टन कंडीशन. तो कुछ कंडीशन होगी, कंडीशनल होगा, तो दैट विल बी कंडीशनल. कंडीशंस लेट डाउन मे बी कंडीशन प्रीसीडेंट और कंडीशन सब्सिक्वेंट. कंडीशन प्रीसीडेंट मीन्स और जो पहले हो गई तो ही कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स होता है, एंड सब्सिक्वेंट मीन्स और जो बाद में आता है. तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ट्रांसफर विल टेक प्लेस एंड कंडीशन सब्सिक्वेंट आ जाएगी. सी द एग्जांपल फॉर दैट. इन एन ऑक्शन सेल. ऑक्शन सेल क्या होता है मालूम है? नीलामी हो जाती है. सपोज प्रॉपर्टीवर जप्ती येते बघा, प्रॉपर्टी जप्त हो जाता है. मीन्स क्या, दैट यू नो आई ओ मनी टू समबडी और वो मैं नहीं दे पाता हूँ तो मेरे अगेंस्ट कोर्ट का ऑर्डर हो सकता है. मैं प्रॉपर्टी कैन बी अटैच. अभी वो प्रॉपर्टी सामने वाला क्या करेगा, बेच के पैसे रियलाइज करेगा. सो अगर ऑक्शन में कभी कभी क्या होता है ना, सो जो लोग आके बोली लगाते हैं ना, तो उनको बोलते हैं ठीक है 72 आवर्स में आके कंप्लीट करो सेल.
तो यूजुअली अपने फिल्म्स में वगैरह देखा रहेगा बोली कैसे लगती है, हाँ ये चीज़ बेचने का है, इसकी बेसिक प्राइस ये है, आप इसके ऊपर बोली लगाओ। सो जो बीडिंग होता है ना, उसको बीडिंग बोलते हैं, वो उससे ऊपर करना पड़ता है, उससे नीचे नहीं हो सकता है। देयर कैन नॉट बी बार्गेनिंग। उधर क्या होता है, ऊपर बोली लगानी पड़ती है। तो एक फ्लैट बेचना है, बेसिक प्राइस 50,000 है, अब 50 लाख है, चलो ऊपर लगाओ प्राइस, कौन लगा रहा है। तो जिनको इनवाइट किया जाता है बीडर्स करके कि आप आके बोली लगाओ, देन दे विल कॉम्पीट अगेंस्ट ईच अदर। मूवीज में अपने देखा हो ना, बोलो 50 लाख, कितना लगाते हो, सामने से कोई बोलता है चलो 51 लैक्स, 52 लैक्स, और कोई लगा रहा है, और कोई लगा रहा है 53 लैक्स, समझो किसी ने लास्ट बोल दिया। बाद में अगर किसी ने उसके ऊपर बोली नहीं चढ़ा तो बोलते अभी हम लोग फाइनल काउंट करेंगे, 53 लैक्स 1, 53 लैक्स 2 एंड 53 लैक्स 3, और उसके बाद में वो हैमर हिट हो जाता है, सो दैट सेल बिकम्स फाइनल। तो ये जो लास्ट बोली जिसने लगाई है ना, उसके ऊपर कंडीशन होती है दैट 72 आवर्स में आके आपको ये कंप्लीट करना है। अगर वो 72 आवर्स में आके पेमेंट करके पूरा आगे का प्रोसीजर नहीं करवा लेगा, दैट ऑक्शन कैन बी कैंसल्ड एंड कैन बी रीसोल्ड। सो दैट इज अ एग्जाम्पल कि इट इज सब्जेक्ट टू कंडीशन। In an auction sale, if a payment is not made within 72 hours, goods may be resold। तो ऑक्शन कैंसिल करके फिर से उसकी बोली लगाई जा सकती है। Then form 6, essential form। There is no particular form in which sale has to take place, as a contract is also as a contract of sale is also a contract। It can be express or implied। तो मुंह से बोल के भी हो सकता है, implied भी हो सकता है। And last essential, 7th one, essential of a contract। A contract of sale being a contract must fulfill all the conditions of a contract। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अभी देखो, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, जो मॉड्यूल 1 में आपने सीखा, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आर द इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये सब को आगे आएंगे। सो एनी स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, कोई स्पेशल लॉ के अंडर कर रहे हो, दैट जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर गोइंग टू अप्लाई। सिर्फ बेसिक उसमें क्या है, नंबर 1 पार्टीज का कुछ कॉम्पिटेंसी है, पार्टीज हु आर एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट दे मस्ट बी मेजर, सेकेंडली दे मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड, एंड थर्डली दे मस्ट नॉट हैव बीन डिस्क्वालिफाइड। और क्या होना चाहिए, दैट कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी लीगल फॉर अ लीगल पर्पज। उसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो लीगल होना चाहिए। सो ऑब्जेक्ट एज वेल एज कंसिडरेशन, एवरीथिंग हैज़ टू बी लीगल। एंड इन एडिशन टू दिस देर इज़ वन मोर रिक्वायरमेंट, दैट देखो, ये देखो आपका रिविजन भी करवा रहा हूँ मैं, दैट कंसेंट मस्ट बी फ्री कंसेंट। खाली कंसेंट सफिशिएंट नहीं है, फ्री कंसेंट होना चाहिए, तो ही कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, नहीं तो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। पहले के लेक्चर्स देख लो, ये नो दिस इज द एडवांटेज व्हाट यू आर हैविंग, दैट द एंटायर लेक्चर्स आर देयर इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। एंड अगर नहीं भी है तो आप सीधा यूट्यूब पे जाओ, मेरा नाम टाइप करो AMBAR जोशी, आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। सो वॉट एवर लेक्चर्स फॉर दिस सेमेस्टर, सेमेस्टर 3, ये आपके जो बिजनेस लॉ 1 है वो पूरे आपको उस पर मिल जाएंगे। एंड these lectures will be on the YouTube till your exams are conducted, then afterwards I will be removing them। Okay, so essentials of contract, I'll just read the headings। number 1, number of parties 2 होने चाहिए minimum। then goods, subject matter can be goods only। then third, transfer of property। fourth, for a price, it must be for price consideration। अगर एक्सचेंज हो रहा है गुड्स के अगेंस्ट गुड्स तो दैट विल नॉट बी सेल। लेकिन पार्टली गुड्स एक्सचेंज हो रहा है, पार्टली प्राइस है, तो भी वो सेल कंसिडर किया जाएगा। देन फिफ्थ, एब्सोल्यूट और कंडीशनल। सो ट्रांसफर कैन बी एब्सोल्यूट और कैन बी कंडीशनल। देन 6, फॉर्म, देर इज नो स्पेसिफिक फॉर्म। एंड 7, essentials of a contract। Now let us see what are the points of distinction between sale and agreement to sale। ये दोनों में फर्क है या नहीं है? See, sale means the actual sale, जहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। सेलर इज सेलिंग एंड बायर इज बाइंग, तो ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है। एग्रीमेंट टू सेल इज व्हाट, ओके ऑन अ नेक्स्ट डेट, ऑन अ फ्यूचर डेट आई एग्री टू सेल यू। तो अभी समझो मुझे मेरे कार बेचनी है, ओके, एंड हम लोग डिसाइड करते हो कि नेक्स्ट महीने के 15 तारीख तक कार का सौदा कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हमने खाली क्या किया है,
इट इज़ मियरली एन एग्रीमेंट टू सेल. सेल कभी होगा, बाद में होगा. सो ये फ़र्क है. सेल में क्या हो रहा है, एक्चुअल गुड्स का ओनरशिप और पोजेशन ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में दैट इज़ टू बी डन इन अ फ्यूचर डेट. सो नथिंग इज ट्रांसफर. ये बेसिक फ़र्क है. सो नाउ लेट अस सी द पॉइंट्स. देयर आर 11 points. Let us see how much you can reproduce in the exam. First point, definition. जो point है that is common to both the agreement sale and agreement to sale, and let us see what the ये यार सेल डेफिनेशन का सेल दिया हुआ है और एग्रीमेंट टू सेल का भी डेफिनेशन दिया हुआ है. देन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. सेकेंड पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स टेक प्लेस इमीडिएटली. वेयर, जब भी सेल है तभी. लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स इज टू टेक प्लेस एट अ फ्यूचर टाइम और सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशन. सो खाली एग्रीमेंट हो रहा है कि सेल होगा करके, दैट इज नॉट टेकिंग प्लेस. देन थर्ड, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटरी. सेल इज अ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. एग्जीक्यूटेड मीन्स जो खत्म हो चुका है, बिकॉज नथिंग रिमेन्स टू बी डन. वेयर एज एग्रीमेंट टू सेल इज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो अभी हुआ नहीं है. दैट विल बिकम एग्जीक्यूटेड ऑन अ फ्यूचर डेट. तो अभी हुआ है क्या, नहीं हुआ है. सो दैट इज नॉट अ फाइनल सेल. Executed means final and executed means which is not yet final. Then next fourth point, conveyance of property. Convey means transfer of ownership. When it comes to sale, buyer gets a right to enjoy the goods against the whole world including the seller. तो कल सेलर भी नहीं बोल सकता है. अभी जाके आपने समझो एक 20,000 का मोबाइल ले लिया, पेमेंट हो गया या EMI पे दे रहे हो, जो भी हो, वो आपने एक बार आपका जो ट्रांजैक्शन है वो हो गया. then you become owner of that particular goods and you can claim ownership even against the seller. तो कल अगर समझो मैं सेलर हूँ, मैंने आपको मोबाइल बेचा, तो कल आके मैं आपको उठाऊंगा नहीं ना, अरे मेरा मोबाइल वापस दे दो करके. तो आप क्या बोलोगे, अरे क्या पैसा दिया लिया, अभी का का तुम्हारा मोबाइल अभी मेरा हो गया. सो देर इज कन्वेंस ऑफ प्रॉपर्टी. कन्वेंस मीन्स व्हाट, कन्वे मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुका है. वेर एज अंडर एग्रीमेंट टू सेल बायर डज नॉट गेट एनी सच राइट, क्योंकि अभी तक एग्जीक्यूटर ही एग्जीक्यूट हुआ नहीं है. दैट इज द बेसिक डिफरेंस. एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ. ये एग्जाम्पल एग्जाम में नहीं लिखना है. सेल और एग्रीमेंट टू सेल स्ट्रिक्ट सेंस में ये एग्जाम्पल नहीं लगेगा, खाली आपको समझने के लिए बोल रहा हूँ. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैरिज एंड एंगेजमेंट. शादी और सगाई में क्या फ़रक होता है. लग्न आणि साखरपुडा ह्याच्यात काय फरक आहे. लग्न एक्झिक्यूट झालं, सप्तपदी झाले, ते विधी झाले, शादी हो गया. वंस दैट सप्तपदी इज डन, मैरिज इज सॉल्मनाइज, मैरिज बिकम्स फाइनल. लेकिन साखरपुड़ा जो होता है, एंगेजमेंट जो होती है, जो सगाई होता है, उसमें क्या होता है, खाली रिंग सेक्शन जो होता है, एंड दे डिसाइड दैट वी आर गोइंग टू गेट मैरिड ऑन अ फ्यूचर डेट. शादी हुई, पति पत्नी बन गए, आंसर इज नो. दैट इज द बेसिक डिफरेंस. अभी यहाँ पे कुछ राइट्स होंगे एक दूसरे के अगेंस्ट, नहीं होंगे. इज एनीथिंग ट्रांसफर्ड, नो. क्या ये हो गया, क्या बोलते हैं उसको, रिश्ता खाली पक्का हुआ है, अभी तक शादी खाली तय हुई है, शादी हुई नहीं है. सो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस. लेकिन ये एग्जाम्पल एग्जाम में नहीं लिखना है, क्योंकि ये लीगली एग्जाम्पल नहीं बैठेगा, खाली आपको समझने के लिए बोल रहा हूँ. देन फिफ्थ पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ रिस्क. ट्रांसफर ऑफ रिस्क ऑफ लॉस ऑफ गुड्स. ट्रांसफर ऑफ रिस्क और लॉस ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस इमीडिएटली बिकॉज ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड. As a result, in case of destruction of goods, loss, it shall be borne by the buyer, even though the goods are in the possession of the seller. तो अभी तक पोजेशन नहीं मिला है, तो भी अगर समझो ओनरशिप ट्रांसफर हुई है, ओनरशिप कभी ट्रांसफर हो जाएगी सेल होती. देन इफ़ यू नॉट कलेक्टेड द गुड्स, और वहाँ पे अगर कुछ डिस्ट्रक्शन या डिस्ट्रॉय हो गए, लॉस किसका है, बायर का है, सेलर का नहीं है. Whereas when it comes to agreement to sell, सेल हुआ ही नहीं है, तो यहाँ पर किसकी होगी, डेफिनेटली सेलर की होगी. ट्रांसफर ऑफ रिस्क और लॉस ऑफ गुड्स डज नॉट टेक प्लेस बिकॉज ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड. अभी भी ओनर कौन है, सेलर ही है, तो उसका ही लॉस हो जाएगा. एज अ रिजल्ट, इन केस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स, लॉस शैल बी बोर्न बाय द सेलर इवन दो द गुड्स आर इन पोजीशन ऑफ द बायर. तो अगर ट्रांसफरशिप, ओनरशिप इज आउट ऑफ क्वेश्चन, अभी तक अगर ये ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, मतलब मालकी हक जो बोलते हैं ना, मालकाना हक जो ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, तो जिसका ओनरशिप है उसका नुकसान होता है. देन सिक्स्थ, राइट ऑफ सेलर अगेंस्ट बायर्स ब्रीच.
ब्रीच मीन्स व्हाट? वायलेशन ऑफ अ कंडीशन. अगर कोई प्रॉमिस तोड़ दिया, वादा करके तोड़ दिया तो क्या हो गया? वादा फरोमशी हो गई. सो यू हैव ब्रोकन योर प्रॉमिस. तो उसका इफेक्ट क्या होगा? दैट इज ब्रीच. सेलर कैन sue द बायर फॉर द प्राइस इवन दो गुड्स आर इन हिज पोजेशन. तो अगर गुड्स बायर सेलर के पास ही है लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है और अगर उसको पैसे नहीं मिले तो ही कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट द बायर फॉर प्राइस ऑफ द गुड्स. वेर एज एग्रीमेंट टू सेल जो है, सेलर कैन sue द बायर फॉर डैमेजेस इवन दो द गुड्स आर इन पोजेशन ऑफ द बायर. Seller can sue means file suit against the buyer for damages even though the goods are in possession of the buyer. तो खुद के पास भी है या उसके पास है. As I told you, possession is something different from ownership. Then 7, rights of buyer against seller's breach. तो अगर सेलर ने ब्रीच किया तो बायर के क्या राइट्स होंगे? बायर कैन sue the seller for damage and can sue third party who bought those goods for goods. तो अगर बायर का ब्रीच हो गया है, सेलर ने ब्रीच किया है, तो बायर कैन sue द सेलर फॉर डैमेज. तो मेरा नुकसान हुआ है करके वो सूट फाइल कर सकता है. Whereas in case of agreement to sell, buyer can sue the seller for damages only. खाली damages के लिए ही कर सकता है सूट. Then effects of insolvency. Insolvency क्या होती है? आदमी को insolvent डिक्लेयर किया मीन्स it becomes disqualified from contract. तो वो कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं कर सकता है. Effect of insolvency of seller having possession of goods. Buyer can claim the goods from the official receiver or assignee because ownership of the goods has transferred to the buyer. तो अगर ownership पास हुआ है सेल के साथ तो उसको even if he becomes insolvent, I am already owner, मुझे already ownership मिल चुका है. So you can claim the goods, possession of the goods. कि खाली पोजेशन उसके पास है, ओनर में हूँ, ओनरशिप इज ट्रांसफर टू मी. तो वो अगर कल दिवालिया हो गया, ही बिकम्स इंसॉल्वेंट, दैट विल नॉट अफेक्ट योर राइट. देन व्हेन इट कम्स टू एग्रीमेंट टू सेल, अभी तो सेल हुआ ही नहीं है, सो यू कैन क्लेम. बायर कैन नॉट क्लेम द गुड्स इवन व्हेन ही हैज पेड द प्राइस बिकॉज ओनरशिप हैज नॉट ट्रांसफर्ड टू द बायर. द बायर हु पेड द प्राइस कैन ओनली क्लेम रेटेबल डिविडेंड. वो छोड़ दो, वो एग्जाम के लिए आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. देन इफेक्ट्स ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर बिफोर पेइंग द प्राइस. तो प्राइस देने से पहले अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो सेलर मस्ट डिलीवर द गुड्स टू द ऑफिशियल रिसीवर और असाइनी बिकॉज ओनरशिप ऑफ गुड्स हैज ट्रांसफर टू द बायर. ही कैन ओनली क्लेम रेटेबल डिविडेंड फॉर अनपेड प्राइस. तो अगर कुछ प्राइस बाकी है उसके लिए वो कुछ कर सकता है, लेकिन उसको क्या करना पड़े? सी, वंस अ पर्सन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, हिज ऑल प्रॉपर्टी इज विद द ऑफिशियल असाइनी ऑफ द कोर्ट. तो उसके पास जाके आप उसका गुड्स क्लेम कर सकते हो या उसको देने पड़ेंगे क्योंकि उसका जो कुछ भी प्रॉपर्टी है उसके पास जाएगा. देन सेलर कैन रिफ्यूज इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल. सेलर कैन रिफ्यूज टू डिलीवर द गुड्स अनलेस ही इज पेड फुल प्राइस ऑफ द गुड्स बिकॉज ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर टू द बायर. तो यहाँ पे ओनरशिप तो मेरे पास ही है ना. तो कल बायर अगर ये हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, दैट विल नॉट अफेक्ट मी. अगर प्राइस मेरे पास प्राइस दिया जा रहा है तो ही मैं दूंगा, सिंपल. देन सी, राइट दो टाइप के होते हैं. ये मैंने पहले डिस्कस किया था, शायद नहीं किया तो फिर से करता हूँ. राइट्स आर ऑफ टू टाइप्स, राइट्स इन रेम एंड राइट्स इन पर्सोनैम. ये दो कंसेप्ट है. राइट इन रेम मीन्स यू कैन क्लेम राइट अगेंस्ट द एंटायर वर्ल्ड. जैसे कि अभी जो मोबाइल से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मेरा मोबाइल है, सैमसंग का मोबाइल है, ये मैंने खरीदा था. वंस आई हैव परचेज दिस, आई एम द ओनर, आई कैन क्लेम ओनरशिप अगेंस्ट द एंटायर वर्ल्ड, इवन अगेंस्ट ऑल यू, कि ये मेरा मोबाइल है. दैट इज राइट इन रेम, दैट इज अगेंस्ट द एंटायर वर्ल्ड. लेकिन राइट इन पर्सोनैम जो होता है ना, दैट इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट वन पार्टी, दैट इज थ्रू कॉन्ट्रैक्ट. तो अगर कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अगर कोई मुझे पैसे देने का बाकी है, नाउ सपोज देर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड मी एंड आई ओ यू ₹1,00,000. तो 1,00,000 रुपया मैं आपको देने का बाकी है, नहीं दिया है, दैट विल बी राइट इन पर्सोनैम, दैट यू कैन क्लेम अगेंस्ट मी एंड मी ओनली. यू कैन क्लेम दैट राइट अगेंस्ट माई सन और माई एनी अदर पर्सन इन द वर्ल्ड. या किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट आप क्लेम नहीं कर सकते हो. सो पर्सोनैम इज अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन एंड यूजुअली पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट. सो राइट इन रेम, पर्सोनैम. Once you are owner, it is right in rem, so you can claim ownership against the entire world including the seller also.
एंड वेर एज एग्रीमेंट टू सेल हुआ है, जो अभी तक सेल फाइनल नहीं हुआ है, दैट इज ओनली इन पर्सोनम. दैट राइट यू कैन क्लेम ओनली अगेंस्ट द सेलर, कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था अभी बेचना पड़ेगा. एंड लास्ट, इन रिस्क ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स. तो अगर डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स हो गए तो हु विल बेयर दैट लॉस, दैट इज द क्वेश्चन. इन केस ऑफ सेल, बायर हैज टू बेयर द रिस्क इवन इफ पोजेशन इज विद द सेलर. क्यों? बिकॉज ओनरशिप हैज ऑलरेडी पास. तो जो ओनर है उसका नुकसान है. एंड सेलर, इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, सेलर हैज टू बेयर द रिस्क, क्योंकि अभी तक गुड्स ट्रांसफर हुए ही नहीं, ओनरशिप ट्रांसफर हुआ ही नहीं है. सो इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, seller has to bear the risk even if possession is with the buyer as ownership has not passed. ownership तो बाद में पास होने वाला है. तो गुड्स मेरे पास है, उसके पास है, दैट इज नॉट व्हाट यू कैन से, दैट इज इनकॉन्सिक्वेंशियल. ओनरशिप पास हुआ है क्या नहीं, दैट इज द क्वेश्चन. जिसका ओनरशिप उसका रिस्क, दैट इज द थिंग. ओके, सो फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यू रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, हायर परचेज और जो वर्क एंड लेबर कॉन्ट्रैक्ट है, दैट आई विल नॉट आस्क. देन इफेक्ट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स, दैट वी विल डू. इफेक्ट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स, दैट वी विल डू इन टूडेज लेक्चर. देन मोड्स ऑफ एसरटेनमेंट ऑफ प्राइस, प्राइस कैसे डिसाइड होता है वो. एंड देन नेक्स्ट सब टॉपिक आई विल स्टार्ट विथ इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंडीशंस एंड वारंटीज. वो क्या होती है, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन एंड व्हाट इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन दीज टू, डिस्टिंक्शन, दोनों के बीच में क्या फर्क है, दैट विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर. सो इफेक्ट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स, दैट वी डू एंड वी स्टॉप टुडे. द इफेक्ट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स मे बी स्टडीड अंडर टू हेडिंग्स. नंबर 1, गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल. सो सेल होने से पहले गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए. एंड सेकेंडली, गुड्स पेरिशिंग आफ्टर एग्रीमेंट एंड बिफोर सेल. सो एग्रीमेंट टू सेल हो गया लेकिन एक्चुअल सेल होना बाकी है, तो क्या इफेक्ट होगा. गुड्स पेरिशिंग बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, if there is a contract of sale of specific goods and those goods have perished or become so damaged that they have not remained anywhere near to the agreed description, the contract is void. And if the seller has no knowledge of perishing of the goods, if the seller has no knowledge of perishing of the goods, thus the contract of sale shall be void on the perishing of the goods if the following conditions are satisfied. तो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा. पॉइंट नंबर 1, इट मस्ट बी कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स. तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, सेल नहीं है, ऑफ स्पेसिफिक गुड्स. तो गुड्स मस्ट बी स्पेसिफिक. सेकंड, द गुड्स मस्ट हैव पेरिश बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट. तो कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले, मतलब एग्रीमेंट टू सेल हुआ है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कभी होता है, सेल होता है तभी. सो एग्रीमेंट टू सेल हुआ है लेकिन सेल नहीं हुआ है, सेल का कॉन्ट्रैक्ट, एक्चुअल सेल हैज नॉट टेकन प्लेस. तो ये जो इनटर्मिनेट पीरियड होता है बीच वाला, उसमें हो जाना चाहिए. एंड थर्डली, सेलर मस्ट नॉट बी अवेयर ऑफ पेरिशिंग और डैमेजिंग. नाउ लेट अस सी एन एग्जांपल. ए एग्रीज टू सेल टू बी 2 bags ऑफ शुगर लाइंग इन हिज गोडाउन. तो मैंने एग्री किया दैट ओके, मेरे गोडाउन में 2 bags पड़े शुगर के, वो मैं आपको बेच दूंगा. अननोन टू बोथ पार्टीज द शुगर बिकम सिरप बिकॉज ऑफ वाटर सीपिंग इन टू गोडाउन. रात को बहुत जोर से बारिश हुआ था और पानी अंदर घुस गया और वो चीनी जो था, जो शक्कर था, दैट हैज नॉट डिजॉल्व. तो क्या लोगे, नहीं लोगे. व्हाट इज द यूज ऑफ दैट, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड. तो अगर हम लोग एग्री किया दैट ओके मैं आपको बेचता हूँ, देन आई गो एंड फाइंड आउट अरे वो बोरी में शक्कर था, वो तो पूरा घुल गया, दैट हैज गॉन नाउ. सो दैट एग्रीमेंट बिकम्स वॉइड. एंड सेकेंडली, गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल. सो सेल होना बाकी है लेकिन एग्रीमेंट टू सेल हुआ है. इट इज़ पॉसिबल दैट स्पेसिफिक गुड्स मस्ट पेरिश बिफोर एन एग्रीमेंट टू सेल हैज़ मेड बट बिफोर इट बिकम्स अ सेल. 2 कंडीशंस है. सो सेल, एग्रीमेंट टू सेल हुआ है लेकिन सेल नहीं हुआ है. द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मस्ट बी एन एग्रीमेंट टू सेल एंड नॉट एन एक्चुअल सेल. ओनली एग्रीमेंट टू सेल. वी एग्री दैट ओके ऑन अ नेक्स्ट डेट वी विल enter into a sale. Then secondly, the agreement to sell must be for some specific goods. And thirdly, the goods must perish or become damaged before the agreement to sell becomes sale. Before buyer becomes owner of the goods. अगर buyer owner हो गया तो उसका responsibility हो जाता है. That is risky. And fourthly, the goods get perished or damaged without any wrongful act or default ऑन पार्ट ऑफ द बायर और सेलर. तो ना मेरा मिस्टेक है ना तुम्हारा मिस्टेक है.
A delivered a horse to be, example, A delivered a horse to be, घोड़ा, on trial for 8 days. 8 दिन के लिए ट्रायल पे दिया था. It was agreed sale would be completed if the horse was found suitable for B's purpose. तो B का जो कुछ भी यूज है उसके लिए अगर वो घोड़ा सही निकला तो ले लूँगा. The horse died on the 3rd day without any fault of either party. The contract was void. So अभी तक सेल नहीं हुआ है तो हॉर्स का ओनरशिप भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ, एंड दैट हॉर्स डाइज नेचुरली आउट ऑफ समथिंग एंड जिसमें दोनों का फॉल्ट नहीं है. In that case, that agreement, that sale will become void, that contract will become void. So modes of ascertainment of price we will do in next lecture, and we will start with a new subtopic, that is condition and warranty.